सत श्री अकाल दोस्तों, क्लिक स्टडी ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਪੀਡੀਐਫ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਟ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਵਲ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬੈਟਲ ਆਫ ਟਰੇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਅਰਾਊਂਡ 1192 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਲੇਵ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਗੌਰੀ ਦਾ, ਉਸਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦੈਨ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜਿਸਨੇ 1206 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਤਬ ਉਦ ਦੀਨ ਐਬਕ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ। ਉਹ ਇਸੇ ਪਰਸਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੁਤਬ ਉਦ ਦੀਨ ਐਬਕ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਹੈ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ 1210 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1236 CE ਤੱਕ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼। ਦੈਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੇਂਜ ਜੋ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ 1236 AD ਜਾਂ ਫਿਰ 1236 ਕਾਮਨ ਈਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਦਾ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਦੈਨ 1266 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1286 ਤੱਕ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗਿਸਾਯੁਦੀਨ ਬਲਬਨ। ਗਿਸਾਯੁਦੀਨ ਬਲਬਨ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਲੇਵ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਨਰਲੀ। ਅਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਾਇਨੈਸਟੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰੂਲ ਰਿਹਾ, ਦੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੀ। ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਨ ਦੀ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਸਟ ਫੀਮੇਲ ਮੁਸਲਿਮ ਰੂਲਰ ਆਫ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੂਲ ਮਿਲਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਇੰਗ ਅ ਮੁਸਲਿਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੰਜ਼ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਦੇ ਵਰ ਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਇਨ ਪਲੈਜ਼ਰੇਬਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼। ਅਤੇ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੂਲ ਦੇਤਾ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਵੀਮੈਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈਵਨ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀਮੈਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਮੰਨਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਨੋਬਲਸ ਨੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 1240 ਜਸਟ 3.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੂਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਕੁਆਇਨਸ, ਬਿਲਨ ਜਿੱਤਲ ਕੁਆਇਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਆਫ ਬਠਿੰਡਾ। ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਕ ਫੋਰਟ ਹੈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਏ ਦੀ ਪਰਸਨ ਨੇਮਡ ਬਹਿਰਾਮ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਫੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਇਨ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ 1100 to 1200 AD। 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਦਾ ਫੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਰੰਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੀ ਓਲਡੈਸਟ ਸਰਵਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਟ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਫੋਰਟ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਫੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
तो रजिया सुल्तान करके भी जाना जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि UPSC इस चीज़ से क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो चांसिस है कि पंजाब PCS भी इस ते क्वेश्चन पूछ सकती है। दैन द ब्रिक्स ऑफ द फोर्ट डेट बैक टू द कुशन पीरियड। जो क्वेश्चनस आए सी, जो मैं तुहानूं दस्सिया सी पिछले लैक्चर में, अराउंड 2nd सेंचुरी BC दे विच आए सी, तो उन्हां दा रूलर सी कनिष्क। तो उस टाइम दी इट्टां लगियां हुई ने इस फोर्ट नूं बनाउण लई, तो कहा जाता है कि राजा दाव ने इस फोर्ट नूं बनवाया सी। करंटली जिहड़ा ये मोनूमेंट है, यह मोनूमेंट ऑफ नैशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिता गया इनू, एंड इट इज़ मेनटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो किला मुबारक याद रखना है, इट इज़ इंपॉर्टेंट फोर्ट इन कॉन्टैक्स्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ पंजाब एज वैल एज इंडिया। हुण गल करते हैं स्लेव डायनेस्टी तो बाद दूजी डायनेस्टी जो आई, जो स्लेव डायनेस्टी हार गई, तो उस तो बाद 2nd डायनेस्टी आई, दैट इज़ खिलजी डायनेस्टी। ਉਹਦੇ 3 ही रूलर मेन ने, अराउंड 1290 तो लैके 1320 तक रही है ये। तो 3 रूलर मेन ने, वन इज़ जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिहड़ा 1290 तो लैके 96 तक रूलर सी पंजाब ते दिल्ली का। दैन दे इज़ अलाउद्दीन खिलजी, 1296 तो लैके 1316 तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है इन दी कॉन्टैक्स्ट ऑफ हिस्टरी ऑफ इंडिया। इन्हें मंगोल इन्वेजनस इंडिया दियाँ होने तो रोकिया ने। उस टाइम ते चंगेज़ खान नाम का रूलर हुंदा सी, जिसने अलमोस्ट सारा ही दुनिया जित ली सी, बट पंजाब दे विच उस टाइम पंजाब ते दिल्ली दे विच अलाउद्दीन खिलजी सर आए सी, जिसने उन्हां दियां फोर्सिस नूं हरा दिता सी। ते पंजाब ते इंडिया दे विच उन्हें चंगेज़ खान दी फोर्सिस नूं मंगोलियन फोर्सिस नूं एंटर नहीं करन दिता सी। दैन देयर इज़ अनदर रूलर दैट इज़ कुतुब उद-दीन मुबारक। तो 3 ही रूलर्स मेन खिलजी डायनेस्टी दे, उस तो बाद खिलजी डायनेस्टी खत्म हो गई। ये जिहड़ी फोटो है, यह पेंटिंग है ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। दैन अनदर डायनेस्टी विच केम इन पंजाब आफ्टर दी खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो तुगलक डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी तो बाद आई। पंजाब दे विच 5 डायनेस्टीज़ आईयां ने मिडीवल इंडिया दे विच। पहले तो स्लेव, दूजे ते खिलजी एंड थर्ड ते तुगलक। बाकी 2 आपां अगले स्लाइड से डिस्कस करांगे। तो जी तुगलक डायनेस्टी से बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी सी, ते इहदा जे एरिया देखो तो आलमोस्ट कंप्लीट ऑफ इंडिया दे विच इन्हां दा रूल हो गया सी। इन्हां दा फर्स्ट रूलर सी गियाउत अल दीन तुगलक। ये 1321 तो लैके 1325 AD दे विच इहदा रूल सी। दैन अनदर रूलर इज़ मुहम्मद बिन तुगलक। इहदा 1325 तो लैके 1351 तक रूल सी। इनू मैडमैन भी कहते हैं हिस्टोरीयंस, बिकॉज जोड़े भी डिसीजन लैंदा सी वो सारे गलत चले जाते सी। लाइक इन्हें कोई नवे कॉइन्स की इशू किए कि आप सरकार के पैसे कॉइन्स नू इशू करने से ज़्यादा ना खर्च हो, जिमें अज के टाइम RBI कॉइन्स इशू करती है, जिस RBI का खर्चा तो है, लेकिन वो सिर्फ वो लोगों तो खर्चा वसूल नहीं कर सकते। उस तरीके नाल उस टाइम भी पहला सोने के कॉइन्स चल रहे सी, सोने ते चांदी दे। इसने सस्ते पित्तल के कॉइन्स लॉन्च किए ताकि सरकार का खर्चा बचाया जा सके, बट लोगों ने कॉइन्स खुद बना ले। एवें ये तो होर भी बहुत सारी गलतियां हुई जिस करके इन्हू मैडमैन कहा जाता है। दैन अनदर इज़ फिरोज शाह तुगलक, जिहड़ा 1351 तो लैके 1388 तक जिसका रूल रहा। 1351 तो लैके 1388 तक रूल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है तुगलक डायनेस्टी का। तो इस दे नाल कुछ पंजाब दी चीज़ां भी एसोसिएटेड ने। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, तो जिहड़ा फिरोज शाह तुगलक है उन्हें बहुत सारे काम किए, स्पैशली टू इंप्रूव दी इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्हें बहुत सारी नवीं चीज़ां बिल्ड करियाँ, लाइक कैनाल्स, रेस्ट हाउसिस, हॉस्पिटल्स, क्रिएटिंग एंड रिफर्बिशिंग रेजरवायर्स एंड डिगिंग वेल्स। तो बहुत सारे खूह पटवाए, नहरां पटवाइयाँ इरीगेशन वास्ते, रेस्ट हाउस बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए। ठीक है, इंकलूडिंग एक इंपॉर्टेंट की है जिहड़े पंजाब दे लई, दैट इज़ सतलुज ने बहुत सारिया कैनाल्स बनवाइयाँ, जिस नाल पंजाब दे विच इरीगेशन बहुत वड्डे पैमाने ते स्टार्ट हो गई। उस तो अलावा इन्हें बहुत सारे नवे शहर बनाए, बहुत सारे नवे शहरों की डिवेलपमेंट लिए पैसे दिते, लाइकवाइज जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। तो ये इंपॉर्टेंट की है फिरोजपुर, जिहड़ा पंजाब का एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वो भी वो डिवेलपमेंट लिए भी इसने सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने बहुत काम कराया।
ਦੈਨ फोर्थ डायनेस्टी जो पंजाब विच आई आफ्टर द तुगलक डायनेस्टी इज़ सैयद डायनेस्टी। जिहड़ी सैयद डायनेस्टी सी चौथे नंबर की डायनेस्टी है जिहड़ी पंजाब दे विच आई मिडीवल पीरियड के टाइम। इसका पहला रूलर सी खिजर खान जिहदा रूल रहा 1414 तो लैके 1421 तक 1414 AD टू 1421 AD। दैन सैकेंड रूलर इज़ मुबारक शाह फ्रॉम 1421 AD टू 1434 AD या फिर 1421 कॉमन एरा तो 1434 कॉमन एरा। दैन थर्ड इज़ मुहम्मद शाह जिसका रूल रहा 1434 टू 1445। मुहम्मद शाह 1434 तो लैके 1445 तक। दैन 1445 तो लैके 1451 तक रूल रहा आलम शाह का। इस दे पीरियड टाइम कुछ पंजाब की हिस्टरी कोई ज़्यादा चेंजिस नहीं आई, कुछ पंजाब बहुत वड्डियां चीज़ां नहीं हुई जिन्होंने याद रखने की जरूरत हो। इट इज़ दी टॉम्ब ऑफ मुहम्मद शाह एट लोधी गार्डनस न्यू दिल्ली। गार्डनस पहला ये सैयद डायनेस्टी नहीं बनवाए सी, पर उस तो बाद लोधी डायनेस्टी आ गई तो उन्हों का कम मन्निया जान लग गया है। तो हुण गल करते हैं फिफ्थ डायनेस्टी की जिहड़ी पंजाब विच आई सी, दैट इज़ लोधी डायनेस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है लोधी डायनेस्टी। लास्ट डायनेस्टी सी बिफोर दी एडवेंट ऑफ मुगल्स। मुगल्स आने तो पहला लास्ट डायनेस्टी जो पंजाब विच आई सी वो सी लोधी डायनेस्टी। हुण लोधी डायनेस्टी की गल करिए तो 1451 दे विच सैयद डायनेस्टी नूं हरा के बहलोल खान लोधी ने इंडिया विच अपना राज कर लिया सी। स्पैशली इहदा जे लोधी डायनेस्टी का रूल देखो तो बहुत बड़ा रूल नहीं सी, ऑल इंडिया लैवल रूल नहीं सी, बल्कि नॉर्दन इंडिया दे विच ही सीमित सी, स्पैशली पंजाब दिल्ली यूपी का एरिया। दैन इंपॉर्टेंट रूलर इज सिकंदर लोधी 1489 टू 1517। दैन इब्राहिम लोधी 1517 टू 1526। लोधीस बारे तुसी पहला सुनिया होना, जो तुसी गुरु नानक देव जी बारे किती पढ़िया होना तो तुसी गुरु नानक देव जी की कहानी विच पढ़िया होना कि वो लोधी खाने विच काम करते सी। तो लोधी खाने मतलब जो कुछ सरकारी दफ्तर सी लोधी द्वारा खोले हुए उन्हां विच काम करते सी गुरु नानक देव जी। तो हुण लोधी डायनेस्टी तो बाद इंपॉर्टेंट बहुत वड्डा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किसी भी हिस्टोरीयन को जाइयो तो जो तुसी ये क्वेश्चन पूछोगे कि किहड़ी बैटल्स ने इंडिया की हिस्टरी में सब तो वध इंपैक्ट किया, तो वो हिस्टोरीयन इन मोस्ट ऑफ द केसिस कहूगा कि बैटल ऑफ पानीपत जो हुई ने, 3 बैटल्स ऑफ पानीपत हुई ने। पानीपत विच 3 लड़ाइयाँ हुई ने, तो जिहड़ी ये तीनों लड़ाइयाँ सी इन्हां तीनों ने ही इंडिया की हिस्टरी दे विच बहुत बड़ा इंपैक्ट पाया है, बहुत बड़ा फर्क पाया है इंडिया की हिस्टरी दे विच। तो आपां डिस्कस करते हैं पहली बैटल ऑफ पानीपत की। ये हुई सी ऑन दी 21 अप्रैल 1526, मतलब 1526 AD दे विच यह पहली बैटल ऑफ पानीपत हुई सी। बैटल किहदे विच हुई सी? इब्राहिम लोधी ते बाबर दे विच। हुण गल की है, बाबर कौन है? ये बाबर परसन वो है जिन्हें मुगल रूलर स्टार्ट किया, मुगल रूल स्टार्ट किया इंडिया दे विच। बाबर इज़ अ सेंट्रल एशियन रूलर। सेंट्रल एशिया तो ऐसी ही इज़ द डिसेंडेंट ऑफ मंगोल कॉन्करर चंगेज़ खान, जिहदी मैं थोनों अलाउद्दीन खिलजी वेले गल दसी सी। चंगेज़ खान जिन्हें अलमोस्ट सारी दुनिया के उत्ते सारी दुनिया जित ली सी उस टाइम ते, उसका डिसेंडेंट सी बाबर। तो उसने इंडिया नूं इन्वेड किया ते इब्राहिम लोधी नूं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच हरा के लोधी डायनेस्टी खत्म कर दी ते मुगल रूल इंडिया दे विच शुरू कर दिता। एंड ही डिफीटेड दी लोधी एंपायर इन नॉर्दन इंडिया। हुण इस बैटल दे विच एक इंपॉर्टेंट फैक्ट की है जो याद रखना है कि जिहड़ा उस टाइम ते पंजाब दा रूलर सी वो सी दौलत खान लोधी। जिहड़ा इब्राहिम लोधी सी उहदा ही अंकल सी ये दौलत खान लोधी। ते उसने बाबर नूं इनवाइट किया सी कि वह पंजाब दे विच आवे, वह भारत विच आवे ते इब्राहिम लोधी नूं हरा के रूल दौलत खान लोधी नूं दवा देवे। ते बाबर नूं इसे गल लई बुलाया गया कि वह आके वह इब्राहिम लोधी नूं हरा देवे। इसे करके उन्होंने पंजाब दे विचों फ्री पास दिता गया। पंजाब दे विचों आराम नाल बाबर ने अपनी सेना नूं क्रॉस करवाया, क्योंकि पंजाब दा
ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਜੋ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ, ਉਹ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਫਸਟ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਐਂਡ ਦੀ ਬਾਬਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮੇਜ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜਦੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਲਈ ਹੈ ਮੈਨੇ ਇਹ ਇਮੇਜ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਨ ਇੰਪਾਇਰ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਲੜਨ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਥੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਾਰੂਦ ਕੈਨਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੈਨਨਸ ਫਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੈਨਨਸ ਦੀ ਡਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਭੱਜ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਹੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਚਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲਰ ਸੀ ਬਾਬਰ। ਇਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਫਰੋਮ 1526 AD ਟੂ 1530 ਕਾਮਨ ਈਰਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਲ ਹੀ ਰੂਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਰਾਜ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਬਟ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੌਲਤ ਖਾਨ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਰਸ ਦੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੀ ਫਰੋਮ 1469 ਟੂ 1539। ਅਤੇ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਛ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਦੀ ਜੋ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਬਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜੋ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਸ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਟਲ ਆਫ ਖਨਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1527 AD ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਹੀ ਰੂਲਰ ਸੀ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੋ ਸਲਤਨਤ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਪੂਤ। ਜਦ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰਾਤਾ ਬਾਬਰ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੁਗਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 1526 AD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਰਾਊਂਡ 1857 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਾਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੁਗਲ ਰੂਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਫਸਟ ਵਾਰ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਗਲ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਮੁਗਲਸ ਦਾ from the Babur in 1526 AD from the first battle of Panipat। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਰੂਲਰ ਆਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਸ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਿਮਾਯੂ। ਜੋ ਹਿਮਾਯੂ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਉਹ ਰਿਹਾ 1530 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1540 ਕਾਮਨ ਏਰਾ, ਦੈਨ 1555 ਤੋਂ 1556 ਕਾਮਨ ਏਰਾ। ਹੁਣ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਤਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਲਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਹਿਮਾਯੂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ 1530 ਦੇ ਵਿੱਚ 1540 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਬਟ ਉਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ 1545 ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਪੇਬਲ ਰੂਲਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਜੋ ਡਿਸੈਂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਬਾਲੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ 'ਤੇ ਰੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਦੈਨ ਦੇ ਫਾਈਨਲੀ ਲੋਸਟ ਇਟ ਟੂ ਹਿਮਾਯੂ ਇਨ 1555 AD। ਤਾਂ 1555 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗੇਨ ਮੁਗਲਸ ਦਾ ਰੂਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਡਰ ਦੀ ਹਿਮਾਯੂ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਹਿਮਾਯੂ ਦੇ? ਵਨ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ 1469 ਟੂ 1539 ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਫਰੋਮ 1539 ਟੂ 1552 AD। ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 1552 ਟੂ 1574। ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਰੂਲਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ
कोई गुरु जी बारे दिता जाता कि इन्हां दे पैरलल मुगल रूलर किहड़ा सी। तां ये तुसीं याद रखना है कि कंटैंपरेरी सिख गुरुज किहड़े किहड़े रहे ने पर्टिकुलर मुगल रूलर दे टाइम ते। हुण नैक्सट गल करते हैं अकबर दी। अकबर का टाइम पीरियड स्टार्ट है फ्रॉम 1556। अकबर ने सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी सी। दो हिमायू दा ही सन सी अकबर, बट सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ के ही इनू दिल्ली का इंडिया का राज मिलिया सी। इन दी सेंस के जिमें ही हिमायू की डैथ हुई नाल दी नाल एक रूलर सी हेमू, उन्हें नाल दी नाल दिल्ली दे उत्ते दिल्ली दियां जो फोर्सिस सी जदों हिमायू की डैथ हुई उन्होंने हरा के दिल्ली दे उत्ते कब्जा ले लिया सी। उस टाइम अकबर की एज बहुत छोटी सी ते वो लाहौर सीट के उत्ते बैठे सी, तां करके फिर उन्होंने लाहौर तो आके उन्होंने दोबारा दिल्ली लड़ाई करनी पई हेमू दे नाल ते उन्होंने हेमू नूं हरा के सैकेंड बैटल ऑफ पानीपत दे विच अकबर दा रूल हो गया सी। जे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की गल करी जाए तो अकबर दे टाइम ते लाहौर है जो वो इंपीरियल सीट रही है। इट मीनस कि रूल किया गया पूरे इंडिया के उत्ते लाहौर तो पंजाब तो फ्रॉम 1585 टू 1598। तो अराउंड 14 साल वास्ते जो पूरे इंडिया का राज सी वो लाहौर तो देखा जाता सी। उस तो अलावा जो अकबर सी वो काफ़ी जनरस राजा सी, वो काफ़ी काइंड राजा सी ते उन्हें काफ़ी सारे रिलीजन्स नूं प्रमोट किया सी इंकलूडिंग सिखिज़म। उन्होंने सिखिज़म का कॉन्सैप्ट बहुत वधिया लग्या सी, तां करके उन्हें सिखिज़म नूं बहुत सारी सपोर्ट दी सी। ही आल्सो अलाउड गुरु जी टू डिवेलप अमृतसर ते उन्हें अमृतसर नूं डिवेलप करने लिए भी सपोर्ट किया सी। इन्हां दे कंटैंपरेरी सिख गुरुज किहड़े सी? वन इज़ गुरु अमरदास जी ਜਿਹੜੇ 52 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 74 तक सी गुरु गद्दी ਦੇ ਉੱਤੇ। दैन गुरु रामदास जी ਜਿਹੜੇ 74 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 81 तक सी गुरु गद्दी ਦੇ ਉੱਤੇ। दैन गुरु अर्जन देव जी जे 81 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1606 तक सी गुरु गद्दी ਦੇ ਉੱਤੇ। दैन नैक्सट रूलर इज़ जहांगीर। ਤਾਂ अकबर तो बाद जो रूलर होया इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ दैट इज़ जहांगीर। इस टाइम ਦੇ ਉੱਤੇ मुगल्स की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई सी ऑल ओवर इंडिया। काफ़ी ज़्यादा एरिया उन्होंने अंडर आ गया सी, ऑलमोस्ट होल ऑफ द इंडिया इज़ अंडर दी मुगल्स। तो उधरों पाकिस्तान अफगानिस्तान तक भी इन्हों का एरिया इन्हों के कंट्रोल में आ गया सी। तो टाइम पीरियड की सी जहांगीर का फ्रॉम 1605 टू 1627 कॉमन एरा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की गल करिए जाए तो जो देख आप अकबर के ईरा के देखा सी कि सिखिज़म नूं काफ़ी सपोर्ट मिली सी, पर जहांगीर के टाइम तो एनिमिटी स्टार्ट हो गई सी बिटवीन दी मुगल रूलर्स एंड दी सिख रिलीजन। तो जो खुसरो सी सन ऑफ जहांगीर का जो एक बेटा सीगा उन्हें अपने ही पिता के अगेंस्ट रिबेलियन कर दी, रिवोल्ट कर दिता। तो वह गुरु अर्जन देव जी दे एक बार आशीर्वाद लैन भी गया सी, तां करके खुसरो ते गुरु अर्जन देव जी बारे एक एनिमिटी पैदा हो गई जहांगीर के दिमाग के विच। इस करके सिखिज़म ते मुगल रूलर्स के बीच एक फ्रिक्शन आनी स्टार्ट हो गई ड्यूरिंग दिस पीरियड। दैन इस करके उन्होंने गुरु अर्जन देव जी को अरैसट कर लिया तो उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिता, जिदे करके बहुत ज़्यादा बीटर रिलेशनस हो गए मुगल्स के विच ते सिख्स के विच। उस तो अलावा जो 6वें गुरु सी गुरु हरगोबिंद जी, उन्होंने भी इन्होंने इंप्रिजन कर लिया सी एट दी ग्वालियर फोर्ट। तुसी दिवाली के कॉन्टैक्सट विच पढ़िया होगा कि जो गुरु हरगोबिंद जी सी वह ग्वालियर फोर्ट दे विच इंप्रिजन किए गए सी। ते वह दिवाली वाले दिन 52 हिंदू राजा नाल लैके वह फोर्ट दे विचों आज़ाद होए सी, तां करके सिख रिलीजन बहुत धूमधाम नाल दिवाली सैलीब्रेट करता है। तो ये उही घटना है जदों जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद जी नूं अरैसट किया सी, इंप्रिजन कर लिया सी एट दी ग्वालियर फोर्ट। दैन कंटैंपरेरी सिख गुरुज किहड़े होए जहांगीर दे? वन इज़ गुरु अर्जन देव जी एंड अदर इज़ गुरु हरगोबिंद जी। हुण नैक्सट मुगल रूलर की गल करिए दैट इज़ शाहजहां। इसका टाइम पीरियड सी 1628 टू 1658 कॉमन एरा। कंटैंपरेरी सिख गुरुज किहड़े सी? गुरु हरगोबिंद जी फ्रॉम 1606 टू 1644। दैन गुरु हर राय जी फ्रॉम 1644 टू 1661, 6th एंड 7th सिख गुरुज। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट की है इस टाइम का, जो तुसी ताजमहल देखा होना या सुनिया होना
जो आगरा विच है। तो ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ बहुत सारी बिल्डिंग ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ शाहजहाँ ने कमीशन कीतियां सी, स्टार्ट करियां सी। ਤਾਂ ਹੀ करके कहा जाता है कि ड्यूरिंग दी शाहजहाँ इट इज़ दी गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्कीटैक्चर। तो मुगल आर्कीटैक्चर की एक गोल्डन एज मनी जाती है। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर काम करेगा शाहजहाँ के टाइम पर। दैन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल रूलर इज़ औरंगजेब। तो औरंगजेब का रूल का पीरियड से 1658 तो लैके 1707 कॉमन एरा तक। 4 सिख गुरुज इन्हों के टाइम के विच रहे ने। वन इज़ गुरु हरकृष्ण जी, दैन गुरु हर राय जी, गुरु हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी। गुरु हर राय जी का पीरियड से फ्रॉम 1644 टू 1661। दैन गुरु हरकृष्ण जी 1661 टू 1664। दैन गुरु तेग बहादुर जी 1664 टू 1675। दैन गुरु गोबिंद सिंह जी फ्रॉम 1675 टू 1708। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की गल करिए इस टाइम की, तो जिहड़ा दारा शिकोह सी, जिहड़ा मुगल रूलर शाहजहाँ का सब तो वड्डा मुंडा सी, सब तो वड्डा पुत्र सी। तो वह गुरु हर राय जी तो ब्लैसिंग्स लैन आया सी, जिहदे करके औरंगजेब नूं एक शक पैदा हो गया गुरु हर राय जी के अगेंस्ट। तां करके फिर तो होर बिटर रिलेशनस हो गए मुगल रूलर्स से सिख गुरुज के बीच। दैन एक कहानी तो सबने सुनी होनी कि कश्मीरी पंडित्स नूं बचाने लई गुरु तेग बहादुर जी ने एक इंपॉर्टेंट स्टैप लिया सी कि उन्होंने परसिक्यूशन बंद की जाए कश्मीरी पंडित सी, जिहदे करके औरंगजेब ने 1675 दे विच गुरु तेग बहादुर जी नूं एग्जीक्यूट करता सी। तां ये सी औरंगजेब विच इज़ अप टू 1707। हुण गुरु गोबिंद सिंह जी सी वो अंटिल 1708 सी। तो तुसी मैनू कमेंट बॉक्स दे विच दसना है कि किहड़ा मुगल रूलर सी जिहड़ा कंटैंपरेरी सी गुरु गोबिंद सिंह जी दे होर औरंगजेब तो अलावा, यानी औरंगजेब तो अलावा किहड़ा इहो जिहा मुगल रूलर सी जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह जी दे टाइम ते सी। इहनूं तुसी मैनू कमेंट बॉक्स विच लिख के दसना है। हुण गल करते हैं एक क्वेश्चन की जिहड़ा PCS 2018 दे विच आया सी, ऐती मार पई कुरलाने तैं की दर्द नहीं आया। तो कई सारे बच्चों ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने लाइन सुनी होनी तो कई नहीं भी सुनी होनी। तो मैं उन्होंने एक चीज़ दसन लग्या कि इहो जिहे क्वेश्चन नूं हैंडल किया जा सकता है जे तुहानूं होर इन्फॉर्मेशन हैगी है। तो क्वेश्चन सी कि ये जिहड़ी लाइन है गुरु नानक देव जी ने वो किस कॉन्टैक्स्ट दे विच लिखी सी, किहड़ी इन्वेजन के टाइम पर लिखी सी। हुण गुरु नानक देव जी का टाइम पीरियड सारिਆਂ नूं पता है कि वो 1469 तो लैके 1539 तक सीगे। 1539 दे विच गुरु नानक देव जी ज्योति जोत समाए ने। तो उस टाइम दे विच सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ की किहड़ी बैटल हुई है, किहड़ी इन्वेजन सब तो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जिवें आपां डिस्कस करिया सी बैटल ऑफ पानीपत, जिहड़ी कदों हुई सी 1526 दे विच। तो 1526 दे विच किहड़ा रूलर आया सी इंडिया दे विच, दैट इज़ बाबर। तो इहो जिहे क्वेश्चन नूं इस तरीके नाल हैंडल किया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ये लैक्चर आप और ही खत्म करते हैं। इदों अगे आप ओरीजिन ऑफ सिखिज़म डिस्कस करांगे अगले लैक्चर के विच। इस लैक्चर की PDF तुसीं साडे टैलीग्राम चैनल तो डाउनलोड कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।